Okay, so my dear friends, today we will discuss about the topic of important points, important points about addition of two vectors. So my dear friends, in a law of parallelogram, in a law of parallelogram, let us see the first point. In law of parallelogram, in law of parallelogram, vector r is equal to vector a plus vector b. आप देखते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है मेरे दोस्तों. So here, if the vector a and vector b makes an angle theta with each other, अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो बच्चों, and both vectors shows the adjacent side of a parallelogram, then we use a law of parallelogram. So अब से अगर कोई पूछे, चलो मैं ही पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब यूज करोगे आप? सोचो. When we use the law of parallelogram? Two or more vectors. No, it's not two or more vectors. Law of parallelogram is only defined for sum of two vectors. First of all, please when remember. two vectors when two vectors are joined tail to tail. Not like this. अगर इसका मतलब इसका meaning कि if the vectors are lying along this direction, then suppose this is a vector A and vector B, then we don't use the law of parallelogram. Then we also use the law of parallelogram. We can. We can, na? So tell me, my dear, when we use the law of parallelogram, please remember. So when they're simultaneous. Yes. और कल मैंने यही बात आपको बताई थी last class में. In the two sides When from adjacent sides of parallelogram. Yeah, and when two vectors act simultaneously. When two vectors act simultaneously, then we use a law of parallelogram. If two vectors use one after another, when two vectors are used one after another, then we use a triangular method. So please remember and be precautious about law of parallelogram. When two vectors act simultaneously at a particular point, then we use a law of parallelogram. And these vectors represented a adjacent side of a parallelogram. Then the vector r is equal to vector a plus vector b. So my dear friends, the magnitude of vector a, the magnitude of resultant vector, the magnitude of resultant vector r is equal to mod of vector r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Here the theta is the angle between vector a and vector b. Clear, my dear friends? Clear? And the angle made by this vector, if this is the law of parallelogram and this is a parallelogram, so this is the resultant vector, and the angle made by this resultant vector from vector a is angle made by resultant vector from vector a is what? So as we know, the alpha is equal to tan inverse b sine theta over a plus b cos theta. Now, by dear, let us see one by one points. The first point is that according to this formula, the first point is that if vector a and vector b are perpendicular to each other. Tell me, my dear, if it is perpendicular to each other,
to each other, then resultant of vector r equal to vector a plus vector b. क्या होगा मेरे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड? Theta is 90 degrees. So तो इसका मतलब ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इनका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर आर आएगा वो किसके बराबर आएगा? इट्स Equal ए under root a स्क्वायर square plus b square. प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. My dear, the value of cos 90 is 0 degree. So भैया 0 multiply with 0 something, it's equal to 0. So this whole term is vanish out. This whole terms will be vanishes. Then vector r is equal to a square root of a square plus b square. Clear, my dear friends? Yes, sir. Clear? So please remember, if two vectors always perpendicular to each other, then what is the resultant? It is the A square root plus of b a square plus equal b under square. root. And this is equal to the hypotenuse. Let us see this. If this is the base, suppose this is a perpendicular, this is a perpendicular, then what is the value of hypotenuse? This is a square plus b square का square root. यही होने वाला है कि नहीं होने वाला? Yes, Square sir. root of a square plus b square is the hypotenuse now. So my dear friends, please remember, for if two vectors are so perpendicular to each other, then its resultant is the square root of a square plus b square. Clear मेरे दोस्तों? And angle made by resultant vector from vector a, tan alpha is equal to what? It is b sine 90 divided by a plus b cos 90. My dear friends, the value of sine 90 is sine 90 degrees 1, cos 90 is 0. So it's very good. बहुत अच्छे धीरज, लाजवाब, बहुत अच्छा कर रहे हैं धीरज आप, very good. So the value of alpha is b into 1. So tan alpha is equal to b upon a. Clear, my dear friends? So alpha is tan inverse b by a. Clear, my dear? Clear? Okay. Yes, sir. Let us see the most important thing. Okay. अब b part, इसका b part देखते हैं. If vector a and vector b are parallel to each other, बच्चों पैरेलल टू ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ? कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में. जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, both are parallel to each other, then the angle between both vectors, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट हो सकते हैं? अगर दो पैरेलल लाइंस जा रही है तो वो कहां पर इंटरसेक्ट होंगी? कहीं नहीं इंटरसेक्ट होंगी. हाँ, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट होंगी. उनके बीच का एंगल ऑलवेज क्या रहेगा? 0 डिग्री. थीटा इज 0 डिग्री. सो वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 degree. My dear friends, the value of cos 0 is always 1. Cos 0 is 1. So 1 into something is 1. 1 into something is something. Okay. So अगर 1 में से किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी ना वापस. तो इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस b द होल स्क्वायर. तो इट्स a स्क्वायर रूट ऑफ a plus b whole square, which is a plus b. So this is r equal to a plus b is the maximum resultant value of the maximum resultant. ठीक है.
सो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सम ऑफ टू वेक्टर्स कब हो सकता है, तो आप क्या बताओगे कि व्हेन वी गॉट द मैक्सिमम सम ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन both vectors are parallel to each other. If the vectors are parallel to each other, then we get a maximum resultant value. बोलो भाई ऐसा नो? Yes, sir. तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे ना कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल. एंड माय डियर फ्रेंड्स, सी पॉइंट्स देखते हैं. इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट टू ईच अदर. अब अमृता कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं सर, हमारा माइक तो बंद है। कुछ सर सर कह रहा था शायद. सर अगर वो सेकंड बी में वो थीटा कैसे जीरो आएगा? अगर थीटा जीरो आया तो वो दोनों वेक्टर्स ओवरलैप करेंगे ना? ओवरलैप का मतलब भी यही हो गया, ओवरलैप करे या फिर एक ही पैरेलल हो, ये दोनों ही मतलब एक ही है बच्चों. अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है तब भी वही सेम चीज है. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस कि यार बच्चों ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे नेवर कैन इंटरसेक्ट. ओके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस इट बोथ वेक्टर्स नेवर कैन इंटरसेक्ट, कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर कहीं भी इन्होंने इंटरसेक्ट किया ना, जैसे कि ये वेक्टर ए आ रहा है और ये वेक्टर बी आ रहा है, तो वेक्टर बी और वेक्टर बी ने जैसे ही इंटरसेक्ट किया तो कोई ना कोई एंगल आ गया ना. बोलो हेलो. तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इफ बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो दे नेवर कैन इंटरसेक्ट ना, सो एंगल इज 0 डिग्री. क्लियर माय डियर? Okay, let us see the C point. If vector A and vector B are opposite to each other, opposite to each other means, suppose this is a point, this is vector A and this is vector B. If vector A and vector B are opposite to each other, then आप देखो तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री 180 डिग्री और पाई रेडियन, है ना? ये भी तो है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं. तो cos 180 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है? cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1. कितनी होती है? -1. क्लियर? सो फॉर्मूला लिखते. फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री. माय डियर, r इज इक्वल टू कितना आ गया? इट्स a स्क्वायर plus b square minus 2ab. So this is what? It is a minus b the whole square, na? It is the whole square of a minus b the whole so square. a minus b whole square and square root. So this is equal to r is equal to a minus b. Clear, my dear friends? Yes, so sir. this is the minimum value of resultant. सो आप खुद सोचो कि आपको मिनिमम वैल्यू कब मिल सकता है. मिनिमम वैल्यू, यस ऑफ कोर्स b माइनस ए इज आल्सो, वो डिपेंड करेगा कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है. इट्स नॉट वेरी बिग डील, बट हमें ये देखने को मिला r इक्वल टू a माइनस बी लिख रहे हैं, तो a माइनस बी इंडिकेट्स दैट कि यार ये इस रिजल्ट वेक्टर सम की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी. Yes, sir. बोलो. तो दिस इज द मिनिमम value of resultant. सो मेरे दोस्तों, आप मेरे को ये बताओ और खुद सोचो कि कब आपको रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है. जब वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए तब. हाँ, तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. कब मिनिमम मिल सकता है? जब वो अपोजिट हो. जब अपोजिट होंगे. that's why we can say that the resultant value is lies between a minus b, which is minimum, to lies between maximum, it is a plus b.
इसी के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? यस सर। किसी भी दो वेक्टर्स का सम जो है वो a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के बीच में लाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्तों? सर हम्म एक डाउट है, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। आपने ना वेक्टर्स की टाइप्स बताई थी ना सर, लेकिन 2 से 3 ही बताई थी, लेकिन लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, पोलर एक्सिस, कोइनिशियल, इनिशियल, कोलाइनर, कोपैरेलर, सारे वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर, वो हाँ नहीं बताया सर आपने। तो मतलब क्या उससे क्या मीनिंग क्या निकल गया? आपने नल वेक्टर बताया और एडिशन वेक्टर से डायरेक्ट। सो लेट अस थिंक अगर कभी भी वेक्टर सम की बात करें, टू वेक्टर्स के एडिशन की बात करें, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि द वैल्यू ऑफ द वेक्टर एडिशन इज लाइज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो जनरल एडिशन फॉर्मूला ऑफ टू वेक्टर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Clear my dear friends? Yes, sir. Okay, यस सर। thank you so much. Okay bye. चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वेक्टर r इज इक्वल टू 5 मीटर है, 5 है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, my dear friends, there is two vectors. One vector is x along 5 meter. This is vector A, angle 45 degree, and other one vector is also same magnitude but makes an angle 75 degree. Then what is the resultant vector r? Vector r is equal to vector A plus vector B. Tell me my dear friends, what is the value of vector A plus vector B? अगर कभी वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोला जाए ना, तो प्लीज राइट मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों ही निकालने चाहिए। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना चाहिए और एंगल भी फाइंड करना चाहिए फ्रॉम एक्स एक्सेस टूवर्ड्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलवेज याद रखना, एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस अलोंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको करिए। So let us see my dear friends. First of all, सीधा आप देखो यहां पर, please see properly both vector A and vector B. Here the vector A and vector B act simultaneously on a single point. Yes or no? Yes, sir. Yes. So if both vectors act simultaneously, then we use a law of parallelogram. So what is the law of parallelogram? Tell me my dear friends. Vector r is equal to r. Under The root. magnitude of resultant vector is vector a square plus b square plus 2ab cos theta. What is that theta? Theta is what? Angle 45. between two vectors. Yes, angle between vector A and vector B. So my dear friends, this x and vector A makes an angle 45 degree from x-axis. Vector B makes an angle 75 degree from x-axis. Then what is the angle between vector A and vector 30 B? degrees. 30 30 degree. So it is very easy for me, na? Now the question is very easy. How is it solved? The magnitude of vector A is 5. So square of 5 is 25. Magnitude of B is also 5. So square of 5 is 25 plus 2 into A into B is what? 5 into 5 into cos 30 degree. My dear, what is the value of cos 30 degree? root 3 by 2. Square root of 3 by 2. So मेरे दोस्तों, this is ER is equal to 25 plus 25 is 50 plus 2 into 25 into square root of 3 by 2. My dear friends, 2 to 2 cancel out. Here
स्क्वायर इज, आप देखो तो 50 प्लस 25 स्क्वायर रूट 3। बच्चों यहां से 25 कॉमन ले सकते हैं। 25 कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 दिस इज 2 प्लस प्लस √3। रूट 3। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो अब बच्चों मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, आप एक बार और देख लीजिए प्लीज, एक बार और देख लीजिए, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सी all forces, both all vectors act simultaneously at a point, at a origin, okay, at a single point. So these vectors A and vector B shows the adjacent side of a parallelogram, okay. So these vectors are shows the adjacent. The question is asked, what is the vector R is equal to vector A plus vector B, ये वैल्यू पूछी गई। That means with the question is asked about magnitude and angle. Okay, so let us first of all we use a law of parallelogram. So in the law of parallelogram, the magnitude of resultant vector is the square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Here the theta is the angle between vector a and vector b. Clear, my dear friends? So first of all, see this problem. In this problem, the vector A makes an angle 45 degree from x-axis and vector B makes an angle 75 degree from x-axis. That's why the angle between vector A and vector B is 30 degree. Clear, my dear? Yes. Okay, so now we can very easily find the angle between vectors A and vector B, and we know very well about the magnitude of vector A and vector B. Just put the values of given formula and solve and get the answer. So my dear, the square root of 5, the magnitude of A is 5, then square of 5 is 25. Similarly, the magnitude of B is also 5, then square of 5 is 25 plus 2 into 5 into 5 into cos 30. Put the value and after solving, the result is 5, 2 plus square root of 3. The value of square root of 3 is 1.73. So this value is almost 5, square root of 3.73. Clear, my dear friends? So आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। My dear, ये तो पहला पार्ट निकला। दूसरा पार्ट क्या निकालना होता है, एंगल। सो फॉर एंगल आप जानते हो कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर, अगर बच्चों ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास आया है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है बच्चों फ्रॉम वेक्टर ए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, टेल मी माय डियर। अल्फा इज tan tan inverse tan inverse inverse a by b b, no, b sin theta upon a a plus b plus b cos cos theta. theta. Clear? Here theta is what, 30 degree. Theta is 30 degree. Then alpha is equal to tan inverse b is 5 sin 30 1 by 2 divided by 5 plus 5 cos 30. My dear, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 2 plus 5 by 2 plus 5 into 5 square root 3 by 2. Clear, my dear friends? हाँ बच्चों, 5 कॉमन करके कैंसिल आउट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आता है tan इनवर्स 1 by 2 divided by 2 plus root 3 by 2. sir 1 by 2 plus √3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों यहाँ पर भी। सो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया, इट्स अ tan इनवर्स 1 upon 2 plus square root of 3. ये मैथ्स का कैलकुलेशन, जिनको मैथ्स अच्छी आती है, जिनको कैलकुलेशन अच्छा आता है, उन्हें तो ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अदरवाइज आप इसको दोबारा करके देखिए, 5 को कॉमन करिए, sin 30 की वैल्यू 1 by 2 होती है। माय डियर फ्रेंड्स, sin 30 is 1 by 2, cos 30 is √3 by 2. फिर से मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप
वेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी वैल्यूज तो आनी ही चाहिए। आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो नीट के बच्चों से तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज 10th स्टैंडर्ड की आज ही ट्रिग्नोमेट्री उठाइए और उसको पूरा खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इतना दिया गया है कि आपका काम चल जाता है। बच्चों ये अल्फा कहां से निकला है? ये अल्फा कहां से निकला है? वेक्टर ए से निकला है ना। और क्वेश्चन में कहां से बताना है हमें? एक्स से सर, एक्स एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स एक्सिस से बोलो। सो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 45। वेरी गुड। एंगल मेड बाय resultant vector from x-axis, from positive x-axis is theta is equal to alpha plus 45 degree, which is ऐसे नहीं लिखते तो कैसे लिखते हैं? क्योंकि एंगल को हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं। तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 3 बाय 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। Yes, Dheeraj, tell me what do you want? सर आई थॉट कि 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू निकाल के ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। 10 45 में नहीं ऐड करेंगे। क्लियर? यस सर, यस। हमें एंगल मेजर करना है। ये एंगल पूरा कंप्लीटली यहां से यहां तक का मेजर करना है। हाँ सर, तो समझ ये गया। एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस अल्फा, ठीक है ना? So let us see this very important question asked by student. The name is, नेम क्या था इनका? चलो जो भी नाम हो, हाँ धीरज। सो देखो भैया धीरज साहब, आप ट्रायंगल लॉ कब यूज करते हैं? ट्रायंगल लॉ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। when two vectors use one after another, when two vectors use one after another, then we use a triangle law. How is it? Let us see. First of all, first addition. Suppose this is the vector A, add with vector B, or the vector B add with vector A. Then here in an addition, first of all draw the vector. Suppose this angle is theta. First of all draw the vector A, and the head of the vector A joined with the tail of the vector B. So आप देखो बच्चों, यहां पर वेक्टर B acts after vector A. Am I right or wrong? Right, Vector A acts before vector B, or vector B acts after vector A. So this makes a triangle because the resultant is the direct distance from tail of the first vector to head of the second vector. Clear मेरे दोस्तों? यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझो कि दो वेक्टर्स कब ऐड होंगे? जब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के बाद में अप्लाई, वन वेक्टर यूज्ड आफ्टर अनदर वेक्टर। ओके, एक के बाद दूसरा वेक्टर अप्लाई हो तो वो कहलाता है ट्रायंगुलर। उस एडिशन को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सपोज यू आर इन द फील्ड, आप किसी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लाइक दिस। ओके माय डियर, जैसे कि ये फील्ड हो, और इस फील्ड में बच्चा आप ऑरिजिन से सबसे पहले चले, मान लो 3 मीटर डिस्टेंस ईस्ट की तरफ, ठीक है? यू आर गोइंग 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेकिंग अ टर्न एंड मूविंग टू 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। Then the question is asked, what is your displacement? So now the displacement is the minimum distance between initial point, जहां से आपने चलना चालू किया, and final point. So the initial point and final point के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? तो 3 + 4 को अगर ऐड किया जाए बच्चों, तो यहां पर 3 के बाद ही तो 4 चले ना।
भाई 3 के बाद ही तो 4 चले, मतलब 3 मीटर चलने के बाद ही 4 मीटर चल रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रेवल 3 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, देन टेकिंग टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड मूविंग 4 मीटर। क्लियर भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। हेलो। सो बच्चों, यहां से आप ये समझ गए कि यार एक वेक्टर अगर ए है और वेक्टर बी है, so vector b applied after vector a, when first of finish the vector a, then vector b apply, then we use the addition of vector r is equal to vector a plus vector b when one vector acts after another vector. Clear? So Yes. using triangular method or triangular law, and in this case both vectors are perpendicular to each other, then the resultant is, and we know very well in addition the head of the first vector join with the head of the first vector join with the second of the tail vector. बोलो भाई, clear? Tail of the second vector. So मेरे दोस्तों, यहाँ जो resultant आएगा ना r, वो किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर plus 4 square, which is 5. Clear, my dear friends? Yes, sir. Yes, sir. Let us see parallelogram method. First of all, be remember, first point, parallelogram method. When two vectors act simultaneously and show the adjacent side of a parallelogram. First of all, both vector acts at a particular point. Both vector acts at simultaneously. एक साथ जब दोनों वेक्टर्स लगेंगे या फिर एक पॉइंट पे लगे और ऐसे लगे जो एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें, तो ये हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पैरेललोग्राम मेथड का यूज करते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes. जैसे ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयर इज टू वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ए and this is the vector b. So both vector acts at a particular point. दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक साथ लाई कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए के बाद बी लगना चालू हुआ, ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली लग गए। सो अगर साइमल्टेनियसली ए और बी यूज कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। दूसरा, अगर ये एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और अगर आप ए के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो, इसी तरीके से बी के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो, तो आप देखोगे कि ए और बी की वजह से, इन वेक्टर्स की वजह से एक पैरेललोग्राम बन चुका है। बना है कि नहीं बना है बच्चों? Yes, sir. और एक पैरेललोग्राम बनने की वजह से जो रिजल्टेंट आया है वो इसके डायगोनल के बराबर है, and the diagonal is a square plus b square plus 2ab cos theta d square. Clear, my dear friends? Yes. Yes, sir. Now the important thing is that what is the example? Give the illustration, sir. So the illustration is, suppose this is the ball, this is a ball, and this ball is tied with the two strings. One applied a force, say मान लो F1, and other one applied a force F2. So these forces act simultaneously on a ball. बोलो भाई yes or no? ये दोनों ही forces F1 and F2, doesn't matter about the magnitude, and both forces act simultaneously along this ball. Then what is the net force? Net force means vector sum of these forces. So this, the angle is theta, so net force is, it is the square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Clear, my dear friends? So Yes. now I think so that you are comfortable to know when we use a triangular method, when we use a parallelogram method. One most important thing is that
for JEE Mains and NEET, for JEE Mains and NEET, we use for JEE Mains and NEET, we adopt a single method. Either use a parallelogram method or using a triangular method. It's your wish. So उसको easy कर देते हैं. आज मैं आपको easy बना देता हूं, इतना easy बना दूंगा कि आपको ये लगेगा कि कोई भी method use कर सकता है. तो पहली बात सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, इस चीज को इजी करने के लिए पहला पॉइंट, विदाउट changing the direction, and magnitude, vectors can be placed anywhere. Means बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड बदले हुए वेक्टर्स को कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. पहली पॉइंट याद रहेगा बच्चों. हाँ. दूसरा पॉइंट है, इन ट्रायंगुलर मेथड, triangle method and parallelogram method, the magnitude of resultant force is same. देखो भैया, ट्रायंगुलर मेथड से मैग्नीट्यूड कितना आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, है ना. ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम मेथड से भी कितना आता था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो दोनों से सेम मैग्नीट्यूड आता है कि अलग अलग आता है? सेम आता है ना. तो ये 2 पॉइंट्स आप कैरी कर सकते हो ना. पहला पॉइंट क्या है, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर. दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों का मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो सेम. चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मेथड से कन्वर्जन ऑफ, आप दोनों में से किसी का भी कन्वर्जन करते हो, इट्स योर विश. ठीक है, तो मैं आपको दोनों पढ़ा देता हूं, दोनों में जो भी आपको बेटर लगे. आई सजेस्ट दैट कि प्लीज फॉलो द, मतलब मोस्ट आप एक ही चीज फॉलो करो, किसी एक लॉ को. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो देखिए, अगर ये वेक्टर ए था माय डियर और ये वेक्टर बी था, प्लस का वेक्टर बी, भैया ए से एंगल थीटा बना रहा था. ओके, अब यहां पर ट्रायंगल मेथड लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी लगा. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. आप देखो तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? एंगल अगेन थीटा. मैंने इस वेक्टर को उठाया, बी वेक्टर को उठाया और सीधे पहुंचा दिया टेल ऑफ द वेक्टर ए के पास. क्लियर मेरे दोस्तों? अरे बोलो. तो बिना डायरेक्शन बदले, मैंने डायरेक्शन बदली क्या, वेक्टर बी जिधर की तरफ जा रहा था उधर ही की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था कि नहीं बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बोलो बच्चों. हाँ, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है ना. यहां भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो अब देखो, तो क्या इस केस में दोनों वेक्टर्स एक तरीके की लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एडजेसेंट साइड. हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया, बोलिए. और ऐसा अगर हो रहा है तो इनका रिजल्टेंट जो है मेरे दोस्तों, वो एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो ट्रायंगुलर मेथड को हमने कब डायगोनल बना दिया, कब उसे पैरेललोग्राम मेथड से कन्वर्ट किया, आपको पता चला क्या?
सिंपल काम किया ना, वेक्टर बी को उठा के रख दिया। चलिए ये मेथड अगर नहीं, ये मेथड दोबारा करते हैं दूसरे डायग्राम के लिए। सपोज बच्चों वेक्टर ए एंगल बना रहा हो अल्फा 1, वेक्टर बी बना रहा हो एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा 2। अब कैसे करोगे सर? कोई बात नहीं, हम अभी भी करेंगे। अब देखो इसको पैरेललोग्राम मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने एक ट्रायंगल बनाया, एक वेक्टर बनाया अल्फा 1 एंगल पर, बन गया बच्चों? बोलो। यस सर। है ना, अल्फा 1 एंगल पर। दूसरा वेक्टर बनाइए इसी पॉइंट पर, दूसरा वेक्टर बनाइए वेक्टर बी अल्फा 2 एंगल पर, अल्फा 2। तो देखिए हमने क्या वेक्टर बी की डायरेक्शन बदली? मैंने क्या वेक्टर बी की डायरेक्शन बदली? क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बदला? नो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अब ये दोनों वेक्टर्स जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये दोनों के दोनों एक एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलिए। तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, ये यहां कहीं आ जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो यहां कहीं आ जाएगा। भाई इसके पैरेलल एक लाइन यहां खींच दो, ये हो गया वेक्टर ए, और इसके पैरेलल वेक्टर बी खींच दो, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर मेरे दोस्तों? तो दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। तो बस आपको करना क्या है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए फिर से फॉर्मूला ये लिखना है, ए बराबर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर? यस सर। बोलो कोई समस्या? तो ये बात याद रहेगी ना, कन्वर्जन याद रहेगा आप सबको? चलिए दूसरा तरीका देखते। अब तो इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो नहीं सकता, फिर भी आप अगर ट्रायंगुलर मेथड में कंफर्टेबल हो, सो कन्वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड इनटू ट्रायंगुलर मेथड। चलो इस बार पैरेललोग्राम मेथड से ट्रायंगुलर मेथड में आते। सो मेरे दोस्तों क्या होता था भैया, दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिजल्ट ऐसे करते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो अब क्या हो रहा है, ये भी तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालता है। तो क्या कर सकते हैं आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हो गया वेक्टर ए, देखिएगा ट्रायंगुलर मेथड बना रहा हूं, और वेक्टर बी को वैसा का वैसा बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए वेक्टर बी को यहां प्लेस कर दो, ये एंगल थीटा। तो बन गया ट्रायंगुलर मेथड या नहीं? हो गया ना ट्रायंगुलर मेथड? यस सर। अरे बोलो। सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा द होल स्क्वायर होल 1/2। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। ओके, सो ये बात समझ गए आप? समझ गए? ठीक है। जैसे और एग्जांपल्स और देख सकते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर कोई ट्रायंगुलर कोई मान लीजिए ऐसा बन रहा हो वेक्टर, तो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं सजेशन आपको देता हूँ, सजेशन मेरा सर, जैसे कि मान लो अभी आपने देखा कि सर ने एक क्वेश्चन लिया जिसमें एक वेक्टर ए ये था, दूसरा वेक्टर बी ये था। अगर इसका ये दोनों पैरेललोग्राम थे, एंगल थीटा था इनके बीच में, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो आप सर इनको कैसे सॉल्व करें? तो फिर से भाई आपको ये एंगल अल्फा 1 दिया गया है ना यार, ये अल्फा 2 एंगल है कि नहीं? अरे बोलो। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेक्टर ए ड्रॉ करना है विच इज एन अल्फा 1 एंगल। ओके, वेक्टर बी को बिना चेंज किए हुए डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, बस हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रख दो, ज्वाइन करा दो, ये एंगल अल्फा 2। तो बच्चों ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये आपका ट्रायंगुलर मेथड से ही आएगा। R इज इक्वल टू
mod of r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos alpha 1 minus alpha 2 या अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्लियर मेरे दोस्तों, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप कब कंफर्टेबल हैं ये आप अपने दिमाग से सोचिए। आप पैरेललोग्राम मेथड के साथ अगर कंफर्टेबल है तो पैरेललोग्राम मेथड लगाइए, आप अगर ट्रायंगुलर मेथड के साथ कंफर्टेबल है तो आप ट्रायंगुलर मेथड लगाइए। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं जिससे आप और थोड़े से अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं टर्म्स को। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स होल्ड अ कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? कम्युलेटिव क्या होता है? अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड किया गया, सो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को आप ऐड करो, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। कुछ होने वाला है क्या? कुछ सोच क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में अगर मैं मान लो मैं ये बोलूं so let us see if both vectors are perpendicular to each other in this case। ये एक एग्जांपल लेके मैं समझा, तो रिजल्टेंट कितना होगा? अगर a प्लस बी करते आप, अगर a प्लस बी करते तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता मेरे दोस्तों? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कि नहीं आता? हाँ। और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर a करते तो भी आप क्या लिखते? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते कि नहीं लिखते बच्चों? टेल मी माय डियर। हाँ, तो आप देख रहे हैं ना, यस सर। a प्लस बी, चाहे आप वेक्टर a प्लस बी लिखो या वेक्टर b प्लस a लिखो, दोनों में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर माय डियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके ओके, लेट अस सी द डिफरेंट थिंग, लेट अस सी द डिफरेंट थिंग्स। बच्चों मेरे, अगर देखो आपके पास दो ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर एडिशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मेरे दोस्तों, ऑर्थोगोनल वेक्टर जैसे a बराबर a इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। सो मेरे दोस्तों, अगर आपको इस केस में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है, ओके माय डियर, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है, सो i का कोफिशिएंट का जो भी वैल्यू है और i के कोफिशिएंट के वेक्टर a की और i के कोफिशिएंट के वेक्टर b की एज इट इज ऐड कर दो। मतलब i वाला i के साथ ऐड कर दीजिए, j वाला j के साथ ऐड कर दीजिए और k वाला k के साथ ऐड कर दीजिए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर? अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बस इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना है? a प्लस डी द होल स्क्वायर प्लस b प्लस e होल स्क्वायर प्लस c प्लस f होल स्क्वायर। दैट इज मींस कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का होल स्क्वायर रूट। ठीक है ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा जिससे आप बहुत अच्छे से कर सको। अगर एक एग्जांपल है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर a है जिसकी वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है और वेक्टर b जो है वो है बेटा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप 2j कैप प्लस 5k कैप 5k cap, then what is the resultant magnitude of this resultant of, बताना है आपको। मतलब या तो ऐसे आप निकाल लो रिजल्टेंट और ऐसे भी पूछ सकता है कि इट इज मॉड ऑफ a प्लस b। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
तो बताएंगे बच्चों, सॉल्व कर लिया, कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए। रूट 200। यस बिल्कुल। आप देखिए ना, अगर दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से एक वेक्टर हो सकता, ऑर्थोगोनल वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनको हम आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखते हैं। सो अगर जैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ए है, ऑर्थोगोनल वेक्टर ए है, तो ए क्या लिखा हमने, एक एग्जांपल लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर बी जो है वो है डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का जो भी आई का कॉफिशिएंट होगा वेक्टर बी के आई के कॉफिशिएंट के साथ ही ऐड होगा। वेक्टर ए के जे का जो कॉफिशिएंट होगा वो वेक्टर बी के जे के कॉफिशिएंट के साथ ही ऐड होगा। सिमिलरली वेक्टर सी मतलब वेक्टर ए के कैप का कॉफिशिएंट जो होगा वही वेक्टर बी के कैप के कॉफिशिएंट के साथ ही ऐड होगा। मींस आई के साथ आई वाला ऐड करिए, जे के साथ जे वाला ऐड करिए और के साथ के वाला ऐड करिए। दैट्स व्हाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते वक्त ए प्लस डी इंटू आई कैप, बी प्लस ई इंटू जे कैप और सी प्लस एफ इंटू के कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त, यस, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ आई होल स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे होल स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के होल स्क्वायर। ओके कि बच्चों इस केस में सबसे पहले वेक्टर आर क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, वेक्टर आर होगा जब वेक्टर आई का कॉफिशिएंट वेक्टर जे के साथ ऐड होगा, मतलब 3 + 5 इज 8 आई है ना माय डियर। 4 + 2 इज 6 जे कैप और 5 + 5 इज 10 के कैप। क्या कहते हो बच्चों? सो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, दैट मींस 8 का स्क्वायर 64, दिस इज 36 प्लस 100 कितना आ गया बच्चों? 200। 64 200, 200 मींस वेक्टर आर मैग्नीट्यूड इज 10√2। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर? टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। यस सर। तो हम बहुत जल्दी जल्दी Yes, कर sir. सकते हैं ना, हम बहुत क्विकली कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को वेक्टर ए ऐसे दे दिया जाए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दे दिया जाए इट्स अ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर सी दे दिया जाए दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो आप बताइए इसको करने में कितना टाइम लगेगा? आपको वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो आप कितनी देर में निकाल सकते हैं? सो जिनका आंसर्स मैच करता है वो जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर r, सो i 1 + 2 + 3 is 6i कैप, सो हम लिख लेते हैं 6i कैप। 2 + 2 1 + 2 is 3, 3 + 5 is 8 j cap plus 5 k cap. So my dear friends, this is square root of I is this 36 plus 64 plus 25. So this will be 125. Square root of 125 means 50. square root of 125 means this is 5√5. Am I right or wrong? Yes. है ना? Square root of 25 is yeah root 125. So clear समझिए ना? जिन बच्चों का ये आंसर है just raise your hand please. मैं भी देखूं कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी। So my dear friends, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब यूज करना है, ट्रायंगुलर मेथड कब यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को भी ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते?
Yes, sir. अब जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, और विचार इस बारे में थोड़ा सा सोच के आइएगा कल नेक्स्ट क्लास में, कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है एंड मेक्स एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम x axis, and vector b is 3 meter makes an angle 90 degree from x axis, then find the magnitude of vector a plus vector b. ओके माय डियर, सपोज ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी सॉल्व करेंगे, करना भी चाहिए क्योंकि अभी आप सिर्फ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार हमें अगर पैरेललोग्राम मेथड भी नहीं आता है, हमें ट्रायंगुलर मेथड भी नहीं आता है, तब भी हम चीजों को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो कल हम वेक्टर्स का रिजोल्यूशंस करेंगे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।